अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार। पेश खिदमत है हेडलाइंस। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अपनी ज़मीन रखने वाले लोगों को घर की तामीर के लिए 3 लाख रुपये देने की स्कीम 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तेलुगु ज़बान व अदब की अजीम रिवायत से पूरे मुल्क के अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत माजूरों के मसाइल पर तवज्जो दे रही है और उनकी भलाई के लिए कई कदम उठा रही है। तेलंगाना में पिछले 4 वर्षों के दौरान दालों की काश्त और पैदावार में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले ने आज कहा है कि मरकज़ी हुकूमत माजूरीन के मसाइल पर तवज्जो दे रही है और इनकी भलाई के लिए कई कदम उठा रही है। हैदराबाद में माजूरों के एक रियासती सतह के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने माजूरों की माली मदद और खुद रोज़गार स्कीमों के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात की तफसील बताई। वज़ीर ने माजूरों के लिए फलाही प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से खुसूसी पोस्टर्स भी जारी किए। उन्होंने खुसूसी ज़रूरतें रखने वाले बच्चों के लिए सुनने में मददगार आलात तक़सीम किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज महबूबनगर ज़िले हेडक्वार्टर के करीब पालाकुंडा में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। पुलिस ने वज़ीर आला को सलामी दी। विज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, कई टीआरएस अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और साबिक़ मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर के दूसरे क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला ने ज़िले हेडक्वार्टर में अम्बेडकर चौरस्ता पर तामीर किए गए टीआरएस पार्टी ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह किया। తలమానికంగా మనకు సమీపంలో కూడా ఏ రాష్ట్రం కూడా లేని విధంగా ఈవెన్ నేషనల్ యావరేజ్ కూడా మనకు క్లోజ్గా కూడా లేకుండా దేశంలో హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా పవర్ అంటే తలసరి విద్యుత్ వినియోగంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 అని చెప్పడానికి కూడా నేను గర్వపడతాను. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అయితే మనకు సాటి కానీ పోటీ కానీ ఎవరు లేరు. అసలు ఎవరికి అట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా రావు. దీని అంతటి కూడా కారణం నిబద్ధతతో పనిచేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు, శాసనసభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, వారితో పాటు రెండింతల అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి తెలంగాణ వివిధ స్థాయిలలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ సిబ్బంది, మీ అందరికీ కూడా ఇంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణ చేసినందుకు ప్రత్యేకించి ప్రభుత్వ అధికారులందరికీ నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో పాలమూరు జిల్లా పర్యటిస్తే అనేక అనుభవాలు, అనేక జ్ఞాపకాలు. ఆ రోజుల్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు, నేను, మిత్రుడు లక్ష్మారెడ్డి గారు, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే, వారు మాజీ మంత్రివర్యులు, ఆ పైనేదో నారాయణపేట ప్రాంతానికి వెళ్ళి నేను జయశంకర్ గారు మాట్లాడుకుంటూ లక్ష్మారెడ్డి గారితో అన్నాం, ఏమండి లక్ష్మారెడ్డి గారు, మీ జిల్లాలో చెట్లు కూడా బక్కగా అయిపోయినాయా అని చెప్పి, అడవిలోని చెట్లు కూడా బక్కగా అయిపోయినాయి, ఏమన్యాయం అనుకుంటూ వచ్చినాం. ఆ కిందికి చూస్తే అసలు కళ్ళలో నీళ్ళు పెట్టుకొని కూడా బాధపడ్డాం. నేను ఆలంపూర్ టు జోగులాంబ నుంచి గద్వాల వరకు పాదయాత్ర తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి భాగంలో చేస్తే ఆ రోజు కూడా అనేకమైనటువంటి అనుభవాలు, అనేకమైన బాధలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఒళ్ళు జలధరించే పరిస్థితి. నడిగడ్డలో ప్రజల పరిస్థితి చూసి మిత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి గారు, నేనంతా మేము అక్కడ కలనీళ్ళు పెట్టుకున్నాం. నేను ఏడవటం ఆ ఊరంతా కూడా ఏడిచిన. వేదనలు, రోదనలు, గుండెలు అవిసిపోయేటువంటి బాధలతోని బాధపడ్డ పాలమూరు జిల్లా ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు ఇటీవల 2 సార్లు గద్వాల శాసనసభ్యులు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రి గారి కార్యక్రమంలో వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఆ పంట కోతలు కోసేటువంటి హార్వెస్టర్స్, ధాన్యం కళ్ళాలలో ధాన్యం రాసులు అమ్ముతున్నటువంటి రైతులు చాలా ఆనందపడుతూ పోయినాం. ఏ తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నామో, దేనికోసమైతే పోరాటం చేసినామో అది ఆ బాట పట్టింది. ఇంకా అద్భుతమైన
बीसी वेलफेयर और सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों के साथ कामों के पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर ने मशवरा दिया कि 4 ज़ेर तामीर इंटीग्रेटेड मार्केट्स को 31 मार्च तक आवाम के लिए दस्तयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के आवाम की सहूलत के लिए 40 करोड़ रुपये के खर्च से शहर की तमाम चारों जानिब इंटीग्रेटेड मार्केट्स तामीर किए जा रहे हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मल्टी स्मार्ट मिलेट्स स्मार्ट्स न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। जवार बाजरे की बरामद को बढ़ावा देने के मकसद से मिलेट्स की आलमी साल 2023 से पहले की एक तकरीब के सिलसिले में ये कॉन्क्लेव रखा गया है। अपनी नौयत का ये पहला मिलेट्स कॉन्क्लेव है जिसमें हुकूमत 30 इम्कानी बरामदाती मुल्कों और जवार बाजरा पैदा करने वाली हिंदुस्तानी रियासतों के बारे में कैटलॉग जारी करेगी। वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स व शहरी तरक्की के टी रामाराव ने रंगारेड्डी ज़िले कलेक्टर अनोय कुमार और कोकटपल्ली जोनल कमिश्नर वी ममता को हिदायत दी है कि वो कोकटपल्ली RTO ऑफिस के करीब लोधा के मुकाम पर झील के मकाम का मुआयना करे और मुबैना नाजायज़ कब्ज़ों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करे। फीचर फाउंडेशन सोसाइटी ने एक ट्वीट किया कि झील गायब हो रही है और इस पर कब्ज़ा हो रहा है, जिसके बाद ये हिदायत जारी की गई। निज़ामाबाद ज़िले में वो तमाम ज़मीनात जल्द ही हरी भरी हो जाएंगी जिन्हें पानी की सहूलत न होने की वजह से कई बरसों से सैराब नहीं किया जा सका। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत सारंगापुर में कामों के 20वें पैकेज के लिए 892 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन फंड से सरजीपोल पंप हाउस और इस जैसे तमाम काम मुकम्मल किए गए हैं। इसके साथ ही ज़िले के मोपाल, डिचपल्ली, इंदलवाई, जिक्रनपल्ली, धारपल्ली, श्रीकोंडा मंडल्स, बालाकुंडाल और मेटपल्ली हलके में लाखों एकड़ ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि तेलुगु ज़बान और अदब की अजीम रिवायत से पूरी मुल्क के अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। विजयवाड़ा में हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से दिए गए एक शहरी इस्तक़बालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि 2020 की नई तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तानी ज़बानों की अहमियत फिर से साबित करने के जज्बे को ज़ाहिर करती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सदर जमहूरिया मुर्मू को तहनीत पेश की। सदर जमहूरिया ने कहा कि आंध्र प्रदेश की ज़मीन खुशकिस्मत है कि यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी कई नदियाँ बहती हैं। इन दरियाओं ने हमेशा आंध्र प्रदेश की अजीम रिवायात को मजबूत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अवाम ने हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में आंध्र प्रदेश के अवाम की सरगर्म शिरकत को याद रखा है। लैंग्वेज और प्यार के अंदर बैरियर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। प्यार का भाषा समझना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पे विराजमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, आंतरिक नमस्कारम। मैं अभिमानानिकी धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में आंध्र प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान आपके आमंत्रण और स्नेहपूर्ण अतिथि सत्कार के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के लगभग 5 करोड़ निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
तिरुमला तिरुपति से सभी देशवासियों को आशीर्वाद देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पवित्र धरती पर आने को मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। काल मैं तिरुपति मंदिर में श्री बालाजी से सभी देशवासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करूंगी और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। विजयवाड़ा के इस क्षेत्र को देवी कनक दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, वंशधरा और नागावली जैसे नदियों ने आंध्र की धरती को सिंचित किया है और यहाँ की समृद्ध परंपराओं को प्राणशक्ति प्रदान की है। हम सभी देशवासियों को अपनी नदी माताओं की स्वच्छता और संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महान बौद्धिक दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना का विकास प्रगति के विरासत से जुड़े रखने का बहुत अच्छा उदाहरण है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती में भारत को आध्यात्मिक विविधता का परिचय तो मिलता ही है, साथ ही हमारा देश की श्रेष्ठ कला परंपरा का दर्शन भी होता है। विजयवाड़ा के निकट ही स्थित कुचिपुड़ी गांव से भारत की एक महान नृत्य कला विकसित हुई और इस गांव का नाम हमारी सांस्कृतिक परंपरा में सदा के लिए अंकित हो गया। तेलुगु भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा से सभी देशवासी परिचित हैं। देश भाषा लंदू तेलुगु लेसा अर्थात देश की सभी भाषाओं में तेलुगु। मरकजी वज़ीर रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की ज़्यादातर स्कीमात अवाम और देही इलाकों पर मरबूत है। उन्होंने कहा कि माजूरों, दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबीलों की भलाई के लिए कई एम्पावरमेंट स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत तेलंगाना रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना में तमाम तबक़ात की भलाई को अहमियत दे रहे हैं। तेलंगाना में दालों की पैदावार और काश्त में इजाफा हो रहा है। रियासत की तश्कील के वक्त से दालों की काश्त के इलाके में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है। 2014-15 में तेलंगाना में दालों की काश्त का इलाका 10.07 लाख एकड़ था। 2020-21 तक 4.54 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 14.62 एकड़ हो गया है। इसी मुद्दत के दौरान हर तरह की दालों की पैदावार 2,63,000 टन से बढ़कर 5,90,000 टन हो गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा है कि पालामुरी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। महबूबनगर में आज शाम एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इन लोगों को 3 लाख रुपये देगी जो अपना घर बनाना चाहते हैं और 15 दिनों के अंदर ये स्कीम शुरू की जाएगी। हर हल्के में 1000 लोगों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान को तेलंगाना की तरह तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कौमी सियासत में सरगर्म रोल अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत की वजह से तेलंगाना को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़या रघुपति चैम्बर्स में हिंदुस्तान के पहले गोल्ड एटीएम का इफ्तिताह हुआ। कस्टमर्स अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए एटीएम से खालिद सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्का कंपनी ने ये एटीएम शुरू किया है। तेलंगाना विमेंस कमीशन की सदरनशीन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने इस गोल्ड एटीएम सेंटर का इफ्तिताह किया। कंपनी ने कहा कि कस्टमर 0.5 से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और सोने की खालिद हैसियत और वज़न की तस्दीक का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। गोल्ड एटीएम 24 घंटे दस्तयाब होगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने यौम बहरिया के मौके पर विशाखापट्टनम में हिंदुस्तानी बहरिया की तैयारियों के मुजाहरे को देखा। हुसैन अलीम पुलिस स्टेशन हदूद में 3 माह कबल हुए एक्सीडेंट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
حادثہ حسین علم پولیس اسٹیشن کی حدود واقع خلوت پلے گراؤنڈ سے پہلے صبح 10:30 بجے 9 سپٹمبر 2022 کو ہوا، جب ناظرہ بیگم جو گھریلو ملازمہ ہے ہر دن اپنے کام پر جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ آٹو سے اترے تو پیچھے سے آ کر ایکٹیوا نے ٹکر دے دی۔ فوراً ناظرہ بیگم کو دلسکھ نگر کے ایک دواخانے میں شریک کروا دیا گیا، جہاں 2 دن بعد ان کا آپریشن کیا گیا اور ان کے لڑکے سید کلیم اللہ حسینی نے حسین علیم پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں شکایت درج کروائی اور FIR بھی جاری کیا گیا۔ پولیس کی لاپرواہی اور نااہلی کا نتیجہ ہے کہ آج تک اس نامعلوم شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی پولیس نے آس پاس کے کیمرے چیک کیے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی لاپرواہی سے قصوروار کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ متاثرہ ناظرہ بیگم کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے نہ ہی قصوروار کو گرفتار کیا اور نہ ہی اسے گرفتار کرنے CCTV کیمروں کی مدد لی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ جلد سے جلد پولیس قصوروار کو گرفتار کریں اور انہیں انصاف دلوائے۔ دعا کے واسطے میرا ایکسیڈنٹ ہوا 7 سپٹمبر کو چہارشنبے کا دن 10:30 کا ٹائم میں جھاڑا گنیشا کے وہاں سے قطر کے ڈالے تھے۔ میرے روڈ پہ تو جگہ ہے تھی جو خلوت میں سائیکل گراؤنڈ کے پاس سائیکل اسٹینڈ سے ذری دور پہ سائیکل اسٹینڈ اسکول ہے وہاں پہ کمپلینٹ کریا۔ ہمارا بچہ 1 سے 10 سخت گیا۔ کون سے PS میں کرے تھے؟ حسین علم کے PS میں کرے۔ کیا رسپانس دے رہے آپ لوگ وہاں گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے وہ لگا۔ ابھی ہمارے بچے کو بہو کو ڈرا کو بھیجے وہ لگا۔ ہاسپٹل گئے تھے آپ؟ ہاسپٹل ہم لوگ گئے دلسکھ نگر کملا ہاسپٹل میں 2.5 گھنٹے میرا آپریشن ہوا۔ میں 5 روز رہی وہاں پہ ہاسپٹل میں۔ تو پولیس والے ہاسپٹل کو آگے نہیں گئے؟ ہاسپٹل کو آئے نا ہمارے گھر کو اب تک۔ کتنے مہینے ہو گئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے؟ اب 2 روز گئے، تیسرا مہینہ نکل 4تھا مہینہ ہوتا۔ کہاں پہ مار لگا تھا؟ پیر کے 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں سیدھے پیر کے۔ کون سی گاڑی سے ہوا تھا؟ بائک سے، ایکٹیوا سے۔ گاڑی کا نمبر وغیرہ کچھ یاد ہے آپ کو؟ میرے کو یاد نہیں ہے۔ وہ بچے بھی میرے بٹھانے کی جلدی میں نہیں لکھ لیا۔ ان بیٹھو بولے اسے 15-20 منٹ بیٹھا میرے بازو میں، ٹھہر گیا تھا ایسا بازو کون میں۔ لے کے گئے تھے آپ کو ہاسپٹل؟ بچے ہمارے گھر کو بھیجے، وہاں کے بچے پہچان کو میرے گھر کو بھیجے۔ ہاں بچے وہاں کے کہاں پہچان جا رہے تھے آپ؟ میں جاب کرنے جا رہی تھی خلوت میں۔ کون سا جاب کرتے ہو؟ میں گھر کے جاب کو جا رہی تھی۔ 20 سال سے گئے سو رستہ ہے وہ، 1 سال کا گاڑی والے رستہ۔ آپ کو لا کے مارے؟ ہاں پیچھے سے آ کو ماریا میرے کو۔ کمپلینٹ جب کرے آپ لوگ؟ 2 دن میں کرے، میرے کا آپریشن نہیں ہونے سے پہلے کرے بچے۔ پولیس والے خود بھی رسپانس 9 تاریخ کو نہیں کرے آج تک۔ FIR کاپی ہے آپ کے ہے پاس؟ ذرا بتائیے۔ ہے کمپلینٹ کرے سو FIR کاپی۔ ACP صاحب DCP صاحب کے پاس بھی کرے، وہ بھی یہ بھی کرے۔ ACP صاحب DCP صاحب ہاسپٹلس کے بھی پیپر ہیں آپ کے پاس؟ ہے ہاسپٹل کے پیپر ہیں۔ پولیس والے آپ کو کچھ بھی رسپانس کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ تلنگانہ حکومت سے؟ ہمارے مدد ہونا، انصاف ہونا اور میرے مدد کرنا ہے۔ ہم لوگ گھر کی واسطے بچے گئے تھے، گھر کے کرائے کی مجبوری جاری تھی میں۔ اب میرے بچے 3 مہینے سے میرا علاج کرا رہے ہیں۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں 22 کروڑ 77 لاکھ سے بھی زیادہ کے ترقیاتی کاموں کا شاندار افتتاح۔ AIMIM پارٹی کے صدر MP حیدرآباد نقیب ملت الحاج جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر یاقوت پورہ حلقے میں تخمینی لاگت 27 کروڑ 77 لاکھ 67 ہزار روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سید احمد پاشا قادری MLA یاقوت پورہ، یاسر عرفات AIMIM پارٹی یاقوت پورہ حلقہ انچارج اور AIMIM کے مقامی کارپوریٹرز حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ موجود تھے۔ ناگا بولی دبیر پورہ نالا AIMIM پارٹی آفس دبیر پورہ ڈویژنز کے علاوہ تمام علاقائی صدور سیکریٹریز اور تمام سینئر لیڈروں اور MIM کے سرگرم اراکین بھی اس موقع پر پروگرام میں موجود تھے۔ خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ میرعالم منڈی میں دینی اجتماع سے مولانا صوفی ارشد چشتی کا خطاب۔ خانقاہ صوفیہ ابوالعالیہ میرعالم منڈی میں ایک دینی اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے مولانا صوفی ارشد چشتی ابوالعالیہ نے کہا کہ 6 دسمبر بروز منگل کو نوجوانوں سے گزارش کی کہ وہ پرامن طور پر گزاریں، جہاں تک ہو سکے عہد کریں کہ وہ آج سے نمازوں کی پابندی کریں گے، کیونکہ نمازوں کے ساتھ غفلت کی وجہ سے مسجدیں آہستہ آہستہ ویران ہو رہی ہیں۔ جس گھر میں فجر کی نماز اور دیگر دوسری نمازیں اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین،
अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अक़िमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम ज़ालिका लमिनश शाहिदीनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमामी TNT न्यूज़ चैनल के नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्तिदाई तकरीर में मैंने आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाआशना नहीं कि जिस मअरूफ़ आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अक़िमुस्सलाह यानी कि नमाज कायम करो। अज़ीज़ान मिल्लत, नमाज की फ़जीलत ऐसी है कि जिसके बजाय मोमिन मोमिन नहीं रहता। मुसलमानों के घरों में पैदा हो जाने से हम मुसलमान नहीं होते। मुसलमान बाकी रहने के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ऊपर जो है अमल पैराई होना चाहिए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान इन्हीं चीज़ों से दूर है। रात भर हम शब्बेदारी करते हैं, चबूतरों को रौनक बख्शते हैं, होटलों को आबाद रखते हैं। आज देखिए कि हमारा माशरा किस सिमत जा रहा है कि जो है हर रेस्टोरेंट जो है रात भर खुली रहती है, लेकिन जिस वक्त फजर के वक्त मस्जिद का ताला खुलता है तो उस वक्त रेस्टोरेंटों को आबाद करने वाले अपने बिछौनों में नजर आते हैं। ये आज एक तल्ख हकीकत है। खुसूसियत के साथ जो है नौजवान तबका इस सिमत जा रहा है कि जो है नमाज पढ़ने की बजाय बाज़ारों को आबाद कर रहा है। और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है कि जिस वक्त तुम बाज़ारों को आबाद करोगे उस वक्त तुम्हारी पस्ती तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। तो पस्ती जो है आज हमारा मुक़द्दर बन रही है। आज फिर जो है 6 दिसंबर करीब है। मुसलमानों को फिर जो है वही दिन याद आता है साल में एक मरतबे कि हमको जो है हमसे जो है हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है मेरे भाई कि बाबरी मस्जिद छीनी क्यों गई? वजह यह है कि हमने उसको गैर आबाद कर दिया। तो सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला जो है उन तमाम मसाजिद का है जिसको हमने गैर आबाद कर कर रख दिया है। अगर तुम अल्लाह के हुजूर अपने आप को, अल्लाह के घर को जो है सजदों के ज़रिए से, अगर तुम अपने आप के सजदों के ज़रिए से अल्लाह के घर को आबाद रखोगे तो किसी की इतनी जुर्रत नहीं होगी कि जो है अल्लाह के घर की तरफ नज़र उठाकर देखे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहता हूँ इन तमाम मामलात की अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो खुद हम है। हमारे कौम की पस्ती के ज़िम्मेदार हम खुद है। हमारे घरों की जो है बर्बादी के ज़िम्मेदार हम खुद। उर्दू के अखबारात के मसाइल की यकसुई के लिए अली गुलशन में इजलास मुनाक़िद हुआ। तेलंगाना रियासत से शाये होने वाले उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी ज़बानों के एडिटर्स को पेश आ रहे मसाइल पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से नुमाइंदगी करने के लिए एक मशावरत इजलास आज अली गुलशन नूर खां बाज़ार में मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत मोहम्मद रियाज़ अली, चीफ़ एडिटर रियाज़ टाइम्स ने की। इस इजलास में जनाब सैयद दिलदार हुसैन आबदी और जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन नाहिद, जनाब सैयद शाह वली इमादुद्दीन जंगी, जनाब मीर हादिल अली, फ़याज़ अहमद ख़ान, सैयद एहसान आबिदी, जनाब सैयद शमशीर हुसैन मुश्ताक़ अली भी मौजूद थे। आज के इजलास की सदारत जनाब मोहम्मद रियाज़ अली, चीफ़ एडिटर रियाज़ टाइम्स इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में जनाब सैयद दिलदार हुसैन आबदी, चीफ़ एडिटर दिलदार हिंद, जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन नाहिद, चीफ़ एडिटर दक्का न्यूज़ एनालिसिस, जनाब सैयद शाह वली इमानुद्दीन जंगी, चीफ़ एडिटर कास्मो बुलेटिन तेलुगु डेली, मोहतरमा अर्शा तबस्सुम, चीफ़ एडिटर समरीन उर्दू, जनाब मीर हादी अली साहब, चीफ़ एडिटर बेमिसाल, जनाब मोहम्मद मुश्ताक़ अली, चीफ़ एडिटर रियाज़ टाइम इंग्लिश डेली, जनाब फैयाज़ अहमद, दक्का न्यूज़ सर्विस, जनाब एहसान अली आबदी, सब एडिटर दिलदार हिंद उर्दू रोज़नामा मौजूद थे। इसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर हज़ब ज़ैल एसोसिएशन के बाडी अहदेदारों को मुंतखब किया गया।
जिसमें सदर के तौर पर मीर हादी अली साहब को मुंतखब किया गया। हमारे सदर मुआस्सर नायब सदर के तौर पर जनाब सैयद दिलदार हुसैन आबिदी साहब को मुंतखब किया गया और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जनाब मोहम्मद रियाज अली साहब रियाज टाइम को मुंतखब किया गया। अब बतौर सेक्रेटरी जनाब सैयद शाह वली इमादुद्दीन जंगी कॉस्मोपॉलिटन उर्दू तेलुगु को मुंतखब किया गया। अब बतौर ट्रेजरर मोहम्मद जैनुल आबदीन नाहिद साहब को मुंतखब किया गया। अब विटनेस के तौर पर सैयद शमशीर हुसैन साहब और जनाब सैयद एहसान आबिदी साहब फैयाज अहमद खान साहब बेस्ट न्यूज़ सर्विस को मुंतखब किया गया। अब मैं इल्तिमास करता हूँ। दोस्त ने कर्ज की वापस तलबी पर दोस्त पर किया हमला, जख्मी दोस्त का दवाखाना उस्मानिया तक पीछा किया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में 3,500 रुपये के कर्ज को लेकर दोस्तों में लड़ाई हो गई। तफसीलात की बमौजिब वसीम नामी नौजवान जो आसिफ का दोस्त है, पेट्रोल पंप पर किसी वजह से फ़ोन रखवा दिया था। बताया जाता है कि वसीम पेट्रोल पंप पर 3,500 रुपये बाकी था, जिसकी वसीम के कहने पर आसिफ ने पैसे देकर 1 माह कबल छुड़वा लिया था। आसिफ वसीम से पैसों का मुतालबा कर रहा था। वसीम हर बार टाल रहा था, यहाँ तक कि आसिफ का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। अचानक वसीम चंद्रायन गुट्टा उमर होटल पर नज़र आया। जैसे आसिफ ने उसका फ़ोन ले लिया और कहा कि पैसे देकर फ़ोन ले लो। वसीम पैसे लाने के बहाने चला गया और साथ में अपने 7-8 साथियों के साथ आया और आसिफ, उसके दोस्त मुजाहिद और आसिफ के भाई को लाठियों और राड से मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस जब इन्हें दवाखाना रवाना करी तो वसीम वहां भी पहुंच गया। इन्हें देखकर आसिफ ने 100 डायल किया, जहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर वसीम और इसके साथी वहां से चले गए। मुतासरीन पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।